السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تاریخ کے دو انتہائی اہم کرداروں سے. ایک ہے ہلاکو خان اور دوسرا مستعصم باللہ. سر انہیں دونوں جو ہلاکو کون ہے؟ تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے یہ ہلاکو ہے اور وہ مستعصم باللہ ہے. اس کی داڑھی ہے. یہ منگولز کی عام طور پر کوئی گھنی داڑھی نہیں ہوتی، بہت چھوٹی سی داڑھی ہوا کرتی ہے، مونچھے باریک مونچھے. تو سر جدو اس ٹگے جنو چنگیز خان بنایا سی وہ تو ایڈی ایڈی داڑھی سی ہمارے شو میں جی. وہ اس لیے کہ وہ سوٹ بہت کر رہی تھی اسے. اچھا یعنی کہ یہ ٹگا ہے. اور تمہاری بات نہیں ہو رہی، اسی کی بات ہو رہی ہے. جب میرے بارے گل کرو میں تھوڑا کو شیپ نہیں کراؤنا ہے. اچھا ہلاکو خان نے شلوار ڈانسراں لی پائی ہے. اچھا جناب، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. اس کا جد امجد ایک بہت بڑا ٹرائبل چیف اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس شخص نے 10 فروری سن 1258 کو بغداد پر حملہ کیا. حملہ انفیکٹ 15-20 دن پہلے ہو چکا تھا. یہ اپنے شاہی انٹوراج کے ساتھ انٹر 10 تاریخ کو ہوا اور 13 تاریخ کو اس نے آرڈر کیا تھا قتل عام کا اور شہر میں لوٹ مار کرنے. تیرے نال صاحب بیٹھے نے میلے چ ٹول ہو جاؤں والے. یار یہ مستعصم باللہ ہے. یہ 37واں اور آخری خلیفہ تھا عباسیوں کا. اس شخص کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑا نفیس اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن بدنصیبی اس کی کہ یہ ہر وقت ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا رہتا اور فروئی معاملات پر بحث مباحثہ اس کے دربار کا خاصا تھا. یعنی جس ٹائم پر ہلاکو چڑھ دوڑا اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی تھی اس کے ہاں انٹلیکچوئلز کی، علماء کی، اس دور کے جو ٹی وی اینکرز تھے ان کی، کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ کس طرح گزر سکتا ہے. کوے کو اگر پینٹ کر کے سفید کر دیا جائے تو ہنس برا مانیں گے، کیا کریں گے؟ پھر ٹھیک حملہ کیتا ہلاکو. یعنی کہ اس دور دی پھکیاں گلاں سی کر دے. یعنی مرغی کے پنجے اور چونچ کا باہمی تعلق وہ ڈسکس ہوا کرتا تھا. نہ ہور سی پناما لیگ ڈسکس کر دے. اس کا ایک وزیر تھا الکمی. واہ. اس نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا رول پلے کیا. وہ اندر سے ہلاکو کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اسے مشورے دیا کرتا تھا کہ ہلاکو نے آ جانا ہے اور آپ بہت تنگ ہوں گے، آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اسے کہیے، جیسے ہم کرتے ہیں ڈس آرمامنٹ، آج کے دور کی ڈس آرمامنٹ، آپ اپنی فوج بہت کم کر دیں. تو الکمی نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے محلات پر ہیرے جواہرات پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کا بجٹ کاٹنا پڑے گا. اس نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے تو مزید بجٹ چاہیے، میں تو اور خریداریاں کرنی ہے، میں 4 محل اور بنا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ ہمارا بجٹ سب سے زیادہ کون کنزیوم کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی ڈیفنس. یہ جیسے آج کے حالات میں ہمارے اکثر نیم دانشور اور سیاسی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفنس پہ اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. بھئی تم رہو گے تو فلاح و بہبود ہوگی، اگر تم ہی نہ رہے تو کس کے کام آنا ہے سارا کچھ؟ تو اس احمد نے کیا کیا کہ ڈیفنس بجٹ کٹوا دیا. یعنی 1 لاکھ فوج کو 10,000 پہ لے آیا. اور وہی الکمی نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں یہ، کیونکہ ہمارے ایک ایک فوجی کے اندر اتنی قوت ایمانی ہے کہ وہ منگولوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، آپ فکر نہ کریں. تو یہ بے وقوف اس کی باتوں میں آ گیا. اس پوری ایپیسوڈ میں جو انتہائی دلچسپ مکالمے اور ڈائلاگز ہیں یہ وہ ہیں جو ہلاکو آخری دنوں میں مستعصم باللہ کے ساتھ کرتا رہا. چلتے پھرتے اس نے کہا بات سنو، یہ اتنا زر و جواہر تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے، یہ کس کام کا؟ تم نے فوج کیوں نہیں بنائی؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کی مرضی تھی، میں کیا کرتا. انہوں نے کہا اب جب میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تاریخ کے چند انتہائی مشہور مکالموں میں سے یہ ایک ہے. ارے مستعصم باللہ تو پھر بہت نلائق ہو جا کے. ایسا ویسا نالائق. اسے جس شخص نے آ کر اطلاع دی کہ جناب ہلاکو کا لشکر جرار آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اس نے کہا تم نے مجھے ڈسٹرب کیا، میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا، اس کو سزا دی جائے. اچھا جس طرح شکاری اپنے شکار کے ساتھ کھیلتا ہے، جیسے چوہا آگے آگے بھاگتا ہے، بلی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، کبھی اسے ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے اس کا جو حشر کرنا ہے اسے معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ 10-11 روز اپنے شکار کے ساتھ
मुस्तासिम बिल्ला के साथ रोजाना उसे बुला लेना, उसे कहता आओ बैठो मैं खाना खाने लगा, उसी के महल में पहले उसे कहता मैं तुम्हारा मेहमान हूं। वो ऐसा बेवकूफ है, वो समझा कि सचमुच यहाँ ये सैरो सयाहत के लिए आया है तो मैं इसे चंद तोहफे तायब दे के फारिग कर दूंगा। उस दौर में होता था बड़ा कुछ देना दिलाना जो है ना, उसके बाद ये चला जाएगा, इसने यहाँ रह के क्या करना, ठंडे इलाके से आया, ये गर्म इलाका है। तो जब इसका दिल चाहता ये उसे इस तरह तलब कर लेता था जैसे किसी चपड़ासी को, किसी रनर बॉय को बुलाते हैं, तो कहता यहाँ बैठ जाओ मैंने खाना खाना है, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो कहता अच्छा जी मैं भी खाता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। वो कहता था बैठो बैठो बातें कम करो और खाना खाओ। तो ये अपने लिए रकाबियों में सालन वालन डालता था, उसको प्लेटों में हीरे जवाहरात भर के दे देता। उन्होंने कहता ले मामा हुण है खा। हाँ कि अब ये खाओ क्योंकि तुमने यही अपने लिए इकट्ठा किया। वाह वाह वाह। वो कहता मैं कैसे खाऊं, उन्हें मुझे नहीं पता, इकट्ठे किए तो अब खा के दिखाओ। इसने बगदाद पर जो जुल्म ढाया वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। तकरीबन 10 लाख अफराद, 1 मिलियन लोग तहे तेग किए गए। कुछ लोग उससे कम बताते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिगर 1 मिलियन तक पहुंचता है। फिर उससे भी ज्यादा जुल्म इसने ये किया कि वहां की ग्रैंड लाइब्रेरी जो उस दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में समझी जाती थी और उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेयर कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता था, इसने सारी की सारी दरिया बुर्द करवा दी कि ये है वो इल्म फजल जिसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा ये असर हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा। सर चंगेज खान तो हमेशा आपका फेवरेट रहा है। हाँ जी बहुत ज्यादा। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और चंगेज खान हर बारी डर जाता सी, यकीन करो। सर इसके बारे में आपकी क्या राय? ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली था लेकिन ये फिलोसोफर उससे बड़ा था। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि चंगेज खान ने जब भी कत्लो गारत की है अपने मुल्क व कौम की खातिर, अपनी बका की खातिर और जरूरत की खातिर की है। इसने फॉर द हैक ऑफ इट, इसको कत्लो गारत का शौक, चूंकि निहायत खौफनाक लश्कर था इसके पास और उस दौर की मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री जो आज की यूं समझे कि जैसे नेटो है। अब अमेरिका भी आज से कुछ अरसा पहले तक तो ये एक स्प्री पे निकला हुआ था, जिसको दिल चाह फैंटी लगा दी, जिसको दिल चाह मार दिया। तो ये तकरीबन उसी जौक का हामिल था। इसने अलकमी के साथ जो सलूक किया वो बहुत मुनासिब था। ਕੀ ਕੀਤਾ? अलकमी जो इसके साथ मिला हुआ गद्दार वजीर था, इसने उसको कत्ल करवा दिया कि तुम अगर अपनी कौम के नहीं हुए मेरे कैसे हो सकते। बहुत अच्छे। ये एक अच्छी मिसाल इसने कायम की। अच्छा जी आते हैं सवालात की तरफ। शुक्र अल्लाह दा ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया। ये बताओ, नहीं तो मैंने तो लगता सी मैं वायलन भी जाऊं रखी हुई है। यार ये बताओ कि फतह करने के बाद कत्लो गारत करना ये कुछ जरूरी था क्या? तुम्हें किससे खतरा था? असल में ये जो कुछ मैं करता था ना जी, हाँ जी, ये जरा लोगों पे एक धाक बिठाने के लिए करता था। धाक बिठाने के लिए? पहले थोड़ी धाक बैठी हुई थी लोगों पे। लोग सारे सीरियसली से लेंदे, जुगता करदे सी। जुगते आज वो मक्कू ठप्पे होंदा। अब तुम बताओ बेवकूफ शख्स हाँ जी। कि दीगर मशागल में तुम इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। असल तो जेडे मेरे सारे दोस्त सन ना वो सारे फिक्के ही सन, फिक्कियां जुगता करते सन। अजे आ सफीना नहीं गया वो भी यार है मेरा। सिर्फ फिक्कियां गल्लां करनियां, मतलब मिसालां फिक्कियां कि तेनू समझाना ते जिवें ऊंट नू रक्शे च बिठाना। ये फीकी तो नहीं है, तो बड़ी मजे की है। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ मतलब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा अच्छा हलाकू खा बीच बीच सौ जाता है। लेकिन सर इसको तो लोग बुरे लफ्जों से ही याद करते हैं। गिड़ा जरा मैंने बुरे लफ्ज़ों से याद करता है ले मेरे सामने। नहीं, जुल्म और सितम की वजह से ये जितने बड़े बड़े कॉन्करर्स थे ना, ये सिर्फ एक शुगल के तौर पे इस सफर पे निकला करते थे कि लोगों को ताख्त और ताराज करते जाएं, लोगों को कॉन्कर करते जाएं। भाई सिकंदर से को पूछे पागल के पुत्र तुम्हें मिला क्या यहाँ ने, वहां सिवाय मलेरिया के, बीमारी के, गर्मी के और जहर में बुझे हुए तीरों के तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? उसी तरह तैमूर लंग भी वैसा ही था। ये मॉडर्न टाइम्स के जो कॉन्करर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ ये देखो, ये अमेरिका अपनी फौज वहीं भेजता है जहां तेल मौजूद हो, वहीं भेजता है जहां उसको राहदारी की सहूलत चाहिए हो। सियानी और समझदार कौमें गन बोट डिप्लोमेसी किया करती थी, जैसे बरतानिया था। बरतानिया, फ्रांस, ये जाए ही वहां करते थे जहां इन्हें फायदा हो। अच्छा जी, मुस्तासिम बिल्ला साहब से एक और सवाल करते हैं कि अगर आप बर वक्त हथियार डाल देते जब ये आंधी और तूफान की तरह उठा था मंगोलिया से, हाँ जी,
تو اسی وقت اگر ہتھیار ڈال دیتے تو اچھے نہ رہتے. ہتھیار ڈال دیندے لوگ کہندے بلا ڈر گیا ہے. یہ تے ڈرن والی کیڑی گل ہے؟ تو یقین کرو اس شخص نو میں اور لتر پھیرے باقی بہت مارا تھا. تو مینوں کہیا سی کہ میں کسی نوں دساں گا نہیں. لیکن یار تم بھی تو پھر بندے دے پتر اتنا گل کرنا گل تو نہیں نا. ایتھے لڑائی لڑن دی کٹھے رکشے تے جانا ہے واپس. یہ تو سر یہ سپیڈ کے ساتھ بغداد پہ آیا تھا. ہاں جی بڑی اس کو کہتے ہیں یہ آندھی کی طرح آیا کرتا تھا. یہ تو کانچی کسی نے کہتے ہیں بغداد روٹی کھول گئی ہے. سر ہلاکو مریا کیویں؟ ہلاکو کے مرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں, لیکن وہ اس لیے مشکوک ہے کچھ کہ اس کے جو ڈیز اور ڈیٹس ہیں نا وہ ٹیلی نہیں کر رہے. اس کی موت 1265 میں واقع ہوئی, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ بغداد کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس نے بڑے متکبر لہجے میں ایک دفعہ سارے سرداروں کو بلایا تو کہا کہ اپنے خدا کو آواز دو جو تمہیں میرے قہر سے بچائے. اور اس دوران یہ ایک لیمو ہاتھ میں لے کر نا, اس کو لیمو نچوڑ کے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا, تو لیمو یہ بار بار اچھالتا اور کیچ کرتا تھا جیسے گیند کے ساتھ کرتے ہیں, اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوا تھا. تو اس کی یہ بات سن کر تمام سردار لرز اٹھے, لیکن اس دور کے ایک عالم امام یوسف جو بہت بڑے ائمہ میں سے, ہماری فقہ میں ان کا بڑا رول ہے, امام محمد اور امام یوسف جنہیں صاحبین کہتے ہیں, تو وہ بڑی بزرگی اور پیری کے عالم میں بمشکل کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم جسے ریڈیکیول کر رہے ہو, تم جسے بہت ایزی لے رہے ہو, اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ لیمو جب تم اچھالو گے تو واپس آتے آتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہارا اسی دوران کلا کما ہو سکتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ بات سن کے دہل گیا اور لیمو نیچے گر گیا. یہ ایک دم لیمو کی طرف لپکا, اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا سرپٹ بھاگ نکلا. بہت خطرناک سا ٹیرین تھا, یہ مختلف چٹانوں اور نوکیلے پتھروں کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا. یہ بہت دیر مفلوج رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ انجام تھا اس جاہو حشم کا, اس دہشت اور ہیبت کا, کہ جب لوگ, یہی تو کہتے ہیں نا کہ لوگ پاگل پنے میں, طاقت کا نشہ آپ کو باقاعدہ پاگل کر دیتا ہے جس طرح دولت کا نشہ. اسی لیے طاقت کے نشے میں سرشار ہر حکمران کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر ملک کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے, ایک نصیحت ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو, کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت پرے کاہ سے بھی معمولی ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی جو پتی ہے اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ, اور اس میں ہم آپ کو لیے چلیں گے صوفیہ. صوفیہ بلغاریہ کا کیپٹل اور وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے. بلغاریہ ایسٹرن یورپ کا ایک اہم اور قدیم شہر ہے. یہاں پر سیولائزیشن کے آثار 7000 سال سے بھی پرانے ہیں. اس حساب سے یہ پاکستان کا ہم پلہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں موہنجو داڑو اور ہڑپا تو ہے ہی, مہر گڑھ کے آثار وہ 7500 سال سے بھی پرانے ہیں. اچھا سر, مہر گڑھ ہے کتنے؟ مہر گڑھ ہے بولان میں, بلوچستان کا بڑا اہم ڈسٹرکٹ, یار محمد رند کا علاقہ. اچھا جی, صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم, عقل و خرد, دانائی. نیشنل ہسٹوریکل میوزیم یہاں کی ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے, جہاں پر تقریباً 6.5 لاکھ آرٹیفیکٹس موجود ہیں. یہاں کی مشہور شاپنگ مال ہے وٹوشا بولیوارڈ. کیڑا جی؟ وٹوشا بولیوارڈ, جس طرح شانزے لیزے ہے نا, کہاں ہے بھلا؟ پیرس. بڑا تمہیں یاد ہے, گئی ہوئی ہو تم پیرس؟ جی. ساتھ کو تھے رکشا چلاؤں سی سر. اسی طرح وٹوشا بولیوارڈ یہاں کی بہت مشہور شاپنگ مال ہے. یہاں کی ایک مسجد بڑی مشہور ہے, بنیا باشی ماسک. بنیا باشی ماسک 1576 میں قائم ہوئی تھی. یہ ایک پروڈکٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. دنیا کا 70% روز آئل یا روز واٹر یعنی عرق گلاب اور گلاب کا سینٹ وہ یہاں پہ بنتا ہے. پھر ایک زمانہ تھا جب صوفیہ نامی ایک کمپنی, وہ اب بہت پیچھے چلی گئی ہے, اس کے ٹیلی ویژنز
माइक्रो टेक्नोलॉजी, उसके कंप्यूटर्स, उसकी घड़ियां बड़ी मशहूर थी। अच्छा जी, बल्गारिया का शुमार उन इंतहाई चंद ममालिक में होता है जहां इस बात को इस तरह किया जाता है और नफी को इस तरह। यानी पागल रहते हैं। नहीं, वो एक हैस्ट है, और ये रोमानियंस करते हैं। रोमानिया और बल्गारिया चूंकि साथ साथ है, अगर आपको याद हो मैंने रोमानिया की मिसाल दी थी। अच्छा जी, दही और पनीर के प्रोडक्ट्स के लिए भी ये बहुत मशहूर है। यहां पर 300 से ज्यादा इकसाम है दही की। 300 किस्म का दही सारे तो दसो। ये होते हैं योगर्ट्स, इनके अंदर फ्रूट योगर्ट्स में जितने फ्रूट उतने योगर्ट। उथे किसी ਨੂੰ सलाम करो ना, नाल दही फड़ा दो। ये लोग 1 मार्च को बल्गेरियंस एक दूसरे को कॉटन के ब्रेसलेट्स टाइप होते हैं, जैसे ये फीते होते हैं, डोरियां होती हैं, हाँ जी। ये देते हैं बाहमी मोहब्बत के लिए। इसको बाबा मार्ता कहते हैं। सोने के नवादरात के हवाले से जो सबसे बड़ा जखीरा मिला वो यहां से था। यानी एक डल जो ईंट है सोने की सबसे वजनी, वो यहां से मिली थी, और दीगर बहुत बड़े जखायर यहां से बरामद हुए थे पुराने महल्लात के। यानी कि सोने की कोई कान मिली थी, सोने के ज़रूफ, नवादरात, जेवरात, हथियार। रोमन बाथ्स यहां के बड़े मशहूर हैं, जिसे टर्किश बाथ कहते हैं आमतौर पर। जी जी। इस कैटेगरी का सबसे पुराना बाथ कहां दरियाफ्त हुआ था? कहां सर? मोहनजोदाड़ो। ये अपना जी अपना। अच्छा जी, खाबों की तरफ आते हैं। असल गल होना ही एक चीज है कबाबचे। हाँ जी। कबाबचे, ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ। अब कबाबचे बीफ का कीमा बड़ा उम्दा तरीके से कूटा हुआ, इसमें मसाले मिक्स करके इसको लंबा लंबा जैसे सॉसेजेस बनाते हैं ना, वो करके ग्रिल किया होता है, बिल्कुल आपके कबाब की तरह, और निहायत लजीज होता है। इसको क्योफ्ता भी कहते हैं। फिर है एक चीज मोसाका। मुसाका। इसमें चिकन, बीफ, अंडे, प्याज, टमाटर, अलमारी, फ्रिज। इन सारी चीजों की एक तह बनाई जाती है और माइक्रोवेव में इन्हें बेक किया जाता है। बहुत लजीज होते हैं। एक बहुत मजेदार चीज है हॉच पॉच। आप कहते हैं ना कि यार ये तो तुमने हॉच पॉच बना दिया, ये है इसका मंबा, ये यहां से चला था हॉच पॉच। सर हौच पौच होता क्या है? हॉच पॉच छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं गोश्त के, उनको पहले डीप फ्राई किया जाता है और थोड़ी देर के लिए वो टेंडर हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। फिर उन्हें बहुत सारे मसालों में, बहुत श्रेड की हुई सब्जी में मिक्स करके मक्खन डाला जाता है बहुत सारा। इन्होंने किधर जाना होता, सारी चीजें इकट्ठियां पा देंगे जेडी डिश आई ना, कोई 9-10 चीजों की आई है। उसकी वजह है कि ये बड़ा अच्छा, वैसे इंटेलिजेंट सवाल है, मैं हैरान हूं इसकी तरफ से आया है। उसकी वजह ये कि आप तो पकाते ना हांडी में जी, आप तो बवक्त जरूरत बारी बारी चीजें डालते रहते हैं, वो बड़े पैन में बनाते हैं और पैन को रखते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव बार बार नहीं खोला जाता भाई साहब। अच्छा, हर चीज बना के रखते, माइक्रोवेव च नहीं हो। अच्छा सर, ये मैं बनाना चाहूं ओए होए, बन सकता है? क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? इधर अच्छे तरीके से बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने डाली हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताया। तुमने क्या चीज क्या चाहिए? ये मैं उसका पूछ रहा हूँ, यो मसाका नहीं। मुसाका सबसे आसान है। आप चिकन और बीफ ले, इसको तय दर तय रखते हैं, इसमें टमाटर, बैंगन, प्याज, अदरक वो डाल के। मतलब सारी मंडी लाया हूँ। नहीं, अभी 2-4 चीजें और है, मसाले हैं बहुत सारे, वो 3 तहों में रख के आप फिर माइक्रोवेव में रख देते हैं। आप बाहर निकल जाओ। कितनी देर के लिए वो उसमें? तकरीबन 1 घंटा चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, हाँ जी। बस 1 घंटा ना उन्होंने तरसियां निगाहों नाल वेखो। तो उसके बाद ये रोटी के साथ, नान के साथ, किस ये तरबूज के साथ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म अनुरोध से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की निहायत खूबसूरत कंपोजिशन, गाया किशोर कुमार ने। पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद जी। जनाब, आजा हो आजा,
सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि पंजाब हेल्थ कमीशन की कार्रवाइयों के बाद ड्रग इंस्पेक्टरों की मौजें मंथलियों में इजाफा हो गया। सर हमारे हुक्मरानों का नए इदारे बनाने का बहुत शौक है, पुराने इनसे चलते नहीं है, नए बना लेते हैं, कुछ अरसा बाद वो भी बंद हो जाते हैं। ये जो हेल्थ कमीशन है इसने आते ही बड़ा तमतराक से बड़ा शोर मचाया, लेकिन जो ही अहवाल देखे सरकारी अस्पतालों के तो एकदम बैकफुट पे हो गया कि भाई ये तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज खड़े हो गए, यानी पाकिस्तान में रहते हुए आपने ख्वाहिशात करनी शुरू कर दी नॉर्वे की, डेनमार्क की, भाई वो हालात तो पैदा करो, वो फैसिलिटीज तो दो, वो फंड्स तो मुहैया करो। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहां 30% एजुकेशन पर खर्च होता है। और सर हमने 15% कट लगा दी है सेहत के बजट के ऊपर। जी 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 जी, मेगा प्रोजेक्ट्स की आबियारी करने के लिए आप इन बेचारों का खून चूसते हैं। अच्छा जी, सुबह की खादा सी जनाब? ਸਵੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए, बस वो परौंठा फिर ही जांडे है जी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। किस डॉक्टर की दवाई खिलाती रही हो? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। बात असल में ये है कि जब एक आप जो आपको मेडिसिन दिए कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन, जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे कैसे आप ठीक होंगे? आप बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं या अताई हैं? ये ताई पुणा कद है, पीछे नजर नहीं आ रहा है की लिखा है FCBS। FCBS क्या होता है? FCPS होता है। लेकिन साडा BS होता है। ये होता है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इन्हें कसम दुआ के पूछो, इन्हें ये तो पता है। हकीम साहब आपको किसी बात का नहीं पता, आप यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। देखो जड़ी बूटियां नु कहन दिया लुटन दया, एडी मेहनत करके आफ्ताब साहब जंगलां 'च जाना पैंदा, कई बारी बांदर हथी पै जंदे आ। हथी नहीं पै, कई बारी बांदर ने हकीम साहब चपेड़ा भी मारियां ने। अभी तुम कौन हो? मैं कंपाउंडर हाँ, कोई बांदर तो नहीं हाँ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मैं प्राइमरी तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? और ताया अबू ने क्या ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। ताया अबू ने क्यों कहा था ये? एवं बकवास कर गया। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। एडी एडी महंगी दवाई दिंदे आ, देखो ना हुणे दी ते कोई दवाई असर करेगी? ਹਾਏ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੋ ਆਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा इन्हों का किहड़े दौर च सोना रंग सी? ਇਹ पैदा होने तो पहले ये खूबसूरत हुंदा सी। अच्छा अब आपकी कैसी तबीयत है? ये फर्क नहीं पिया, बड़ी खाधी है दवाई, कोई ढिड दे च कड़ेलां जिहां फिरदियां जी कड़ेलां फिरदियां। हाँ कड़ीला दा मेरे को बेहतरीन इलाज है। होता क्या ये कड़िल होती क्या है? जो हम लोग हैं MBBS, इन लोगों को नहीं पता कि ये कड़िल्ले हम क्या दरियाफ्त करे कड़िल्ले। तुमने MBBS कहाँ से किया? यही कहीं से, किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी और किंग एडवर्ड होटल तो कीता जी, उत्थे ही हुंदा। हकीम साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तू मोटा है, मैं तेरी इज्जत करना। और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से कर रखा है। डिग्री किधर है तुम्हारी? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਘਰ ਪਈਆਂ ਕੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾਂ। हाँ ये असल लहजा ये है तुम्हारा, ऐसे ही खाम खा मुहज्जब बन के ना हम पे जाली अक्स डाल रहा है। ये डॉक्टर हुंदे ही इस तरह दे जनाब। सारे इस तरह नहीं होते, जो अताई होते हैं, जो जाली होते हैं, वो इस तरह होते तो हैं। सारे हकीम भी ऐसे नहीं होते। जी हकीम के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता ए मैं करोड़ा चू ही एक का। है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, ये आगे रखा क्या हुआ है? ये दवाइयां और मैं खरबूजे लाए हैं। मेरा शहद 1 नंबर शहद था, फलाई दा शहद। किसका शायद? फलाई फलाई। फुलाई कहां से लाते हो? अब चुप हो गया, देखा पता नहीं ना फुलाई का शहद कहां से आता है? सानू भी किसी ने दसिया कि फुलाई दा है। क्यों इसे फुलाई का शहद क्यों कहते हैं? इन बोतलें पा के ना फुलाई दा हुंदा है। जनाब मेरे को 1 नंबर शहद था, छोटी मक्खी दा। तुम छोटी या बड़ी मक्खी को छोड़ो, मेरे को दरमियानी मक्खी दा भी शहद है। वो नहीं हुंदी खुसरा मक्खी। बताओ तो सही है कहां से लिया? फुलाई का शहद होता कहां है ये तो बताओ। जनाब बस असी ले आने हैं फुलाई दा कहां शहद। से लाते हो? मल्तान तो लेके आई दा। मल्तान के इलाके में फुलाई दूर दूर तक नहीं होती, किथे हुंदी? ये पठवार के इलाके में होती है, दुआबे में होती है। ये भाई फिरदा ही रहंदा, इन्हू होर कोई काम नहीं। चलो तुसी दसो जनाब केड़े इलाके च हुंदी फुलाई दी शहद? यार ये चकवाल भरा पड़ा है फुलाई से। उत्थे ही लेके आया मैं जनाब। तुमने अभी मल्तान कहा था। हकीम साहब चाहे जिथे मर्जी जान, हकीम भावे उन्होंने पट्ठा है तानू की है। उन्होंने हथ शिफा ही इन्नी है, जो मरीज है बच के नहीं गया। वाह 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 वाह। ए दुकान के पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है? जी जनाब, अद्धा उन्हों दा अद्धा साडा है।
अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख अताई डॉक्टर्स आप जैसे हैं। सिर्फ पंजाब में 2 लाख हैं, 50,000 के करीब लाहौर में। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ है जी ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ तू इन्हू ठीक करके की करना है मैनू दस। ਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੇ ਪੱਪੂ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ ਸਕੋ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ। पप्पू ਹਾਂਜੀ इन्हू सर्विस स्टेशन ले जा पुत्र। आपको मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 3 माह आपने ये मेडिसिन खाने हैं। ओ जी मेडिसिन खा खा के तो मेरा है हाशर होया ऐसे सीना सी मेरा नशा भी करते हो? असल बात ये नहीं बता रहा, ये नशा करता रहा। अच्छा, जब ये मेरे पास आया ये नशा ही था, लेकिन अब नहीं कर रहा नशा। पूछे ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਦਾਨਿਆਲ ਦਾਨਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਬ ਚ ਚੁੜੇਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੁੜੇਲਾ ਨੂੰ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਜੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਸਰਦਾਈ ਆਪ ਕੋਟ ਕੇ ਪਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਐ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਦਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਆਲ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਸਲੰਸਰ ਫੜਨਾ ਔਰ दौड़ते कुत्ते नु टक्कर मारनी है ठीक है। मैं आफ्ताब साहब सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर। क्यों? हकीम साहब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई, मेरी दुकानदारी पे बड़ा असर है। यानी आप इसे दुकानदारी कहते हैं? दुकानदारी कहना इन होर की कह दमा, इन्हू अपना अब्बा कह दमा, अपना ताया कह दमा, इन्हां दवाइयां नू अपनी अम्मी कह दमा। मैं पैसे कितने कमाता है एक दिन में? डॉक्टर साहब 30 to 35 हजार रुपया कमाते जी एक दिन में? हाँ जी। अभी कोई इतना ज्यादा वो सर्कुलेशन नहीं है। 50,000 तो मैं दे बैठा जी इन्हां नू। मेरे को डबल बेड लिया तू 50,000 मैंने दे दिया। हर वेले इत्थे आके मेरे को इंज बैठा हुंदा सदका लैण आया तू। दानियल दवाई रहने दे, तू मेरे को साबुन ले जा। कितने बजे सुबह उठना है? 8 बजे। पुत्र तू क्यों उठना है? राती इन्हां नू नींदर नहीं पैंदी। नींदर नहीं, इन्हें जदों पैंदा कुत्ता ही पैंदा। दानियाल पुत्र हाँ जी तू ठीक होना चाहना? हाँ जी फात हो जा। बेटा पप्पू हाँ जी इस तरह कर नाल दी दुकान तो खमीरे गौजबान लेके आ। अच्छा जी अच्छा खमीरे कौजबान। हाँ खमीरे गौजबान ठीक हो जाएगा पुत्र, घबराने वाली कोई गल नहीं। ले जी आप जो मेडिसिन आपको दी है मैंने आप खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ठीक है जी, मैंने एक पेशेंट देखना है जरा, मैंने उधर जाना है। डॉक्टर का ते अपना बेड़ा गर्क होया। कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਰਾ। हाँ जी ਆਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਏ साहब नु सलाम कर, उन्होंने को 500 मांग के लिया। हकीम बन भंड ना बन, मैं तेरी बकवास बड़ी देर तो सुन रहा। ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा दानियाल नु बिठा दे, इन्हें मैंने वाट लिया तो अच्छा नहीं होएगा। दानियाल बेटा हाँ जी तुरना ते लत्तां भी पीड़ हुंदी है? हाँ जी लत्तां पीड़ हुंदी है जी। बैठना ते दंद पीड़ हुंदे आ? दंद भी हुंदे आ। अखां के चाला चाला आंदा जी। तू किसे महंगी गड्डी थले आ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। पागल होई है, डॉक्टर बदली दा नहीं हुंदा जिन्नी देर तक मरीज फौत ना हो जाए। दानियाल पुत्र हाँ जी दीवार ते चढ़ जाना जी। बांदरी दा बच्चा है। ओ किथे लैंदा तू मैनू? पुत्र तेरा इलाज सिर्फ जुगता ही है, तेरे दवाई ना फर्क नहीं पैना। दानियाल पुत्र बैठ। अच्छा जी ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਟੇਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। आ को लंडे दा बटेरा पिया ते दे दियो, को बोरा ला बटेरा है तो उसने जिन्नी खराब थी ओदे अंदर पचाती है ना, इन्हें अखीर सुतिया पे चल जाना। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਵਾਨੀਆਂ। कुछ शैमा खुआने वाली नहीं भी होती है।
تو جن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.